اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں بے باک انداز میں سننے اور دیکھنے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو بھی آپ کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر مہینے مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر۔ جی ہاں، گزشتہ کل الحمدللہ میدان عرفات مسجد نمرہ میں ڈاکٹر شیخ محمد عبدالکریم نے خطبہ حج دیا۔ حج مکمل ہوا۔ ہندوستان سے بھی ہزاروں کی تعداد میں حاجی گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے پیارے ملک کے لیے باقاعدہ میدان عرفات وغیرہ میں دعائیں کی، کیونکہ پیارے ملک میں اس وقت یوں سمجھیے کہ نفرتوں کا بازار گرم ہے اور نفرتوں کے پجاری حاکم بن کر بیٹھے ہیں، اور ظالموں، قاتلوں نے یوں سمجھیے کہ عجیب انداز میں ملک کا نفرتی ماحول بنا دیا ہے۔ تو ہم نے اپیل کی تھی حاجیوں سے، الحمدللہ ہمیں خبر آئی اور کئی لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ ہندوستان کے حاجیوں نے ہندوستان میں امن شانتی کے لیے دعائیں کی، اور وہاں پر جو خطبہ حج دیا گیا، 10 لاکھ لوگوں نے اس حج کے خطبے کو سنا۔ اس موقع پر باقاعدہ خطبہ حج میں اتحاد اور اتفاق کے بارے میں بتایا گیا کہ مسلمانوں، آپس کا اتحاد ہی تمہیں کامیاب کرے گا۔ نفرت سے بچنے کی تلقین کی گئی اور انسانیت کے ساتھ، مانوتا کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا جائے، اس پر زور دیا گیا۔ آئیے دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ جاپان کے وزیر اعظم کو گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی۔ اسی کو لے کر آج ہندوستان میں قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مسٹر آبے کے لیے ہندوستان کے گہرے احترام میں 9 جولائی یعنی آج 2022 کو قومی سوگ کے دن کا اعلان کیا۔ مسٹر مودی نے کہا کہ سابق وزیر اعظم جاپان ہمارے گہرے دوست تھے اور ان کے احترام میں، گہرے احترام میں آج قومی سوگ منایا جائے گا۔
मैं आपको बता दूं कि सोनिया जी, मनमोहन साहब, राहुल गांधी और प्रियंका जी ने भी आबे की मौत पर श्रद्धांजलि पेश की, ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि आबे हिंदुस्तान के बड़े अच्छे दोस्त थे और जापान के सबसे तवील अरसे तक रहने वाले वजीर आज़म थे। चलिए आइए, इस वक्त फिर बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस वक्त सहाफ़ी, पत्रकार, कोई भी शख्स अगर प्यारे लाडले वजीर आज़म नरेंद्र जी मोदी के खिलाफ बोलेगा या हुकूमत की गलत नीतियों के खिलाफ लिखेगा या बोलेगा तो अब यूँ समझिए कि संविधान का भी खिलवाड़ किया जा रहा है और बोलने की और लिखने की आज़ादी को भी छीना जा रहा है। और अभी बड़ी खबर आ रही है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूँ समझिए कि मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट आकार पटेल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने तकरीबन 61 करोड़ की उन पर पेनल्टी लगाई है। ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल और उसके साबिक सीईओ आकार पटेल पर गैर मुल्की करेंसी से मुताल्लिक कानून फीमा के ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और ईडी ने एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल पर 51 करोड़ 72 हजार रुपये और आकार पटेल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और मैं आपको बता दूं कि आकार पटेल साहब वजीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करने के लिए बड़े मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट माने जाते हैं। इन्होंने अक्सर नरेंद्र मोदी की नीतियों पर और उनके कामों पर ज़बरदस्त अंदाज में तनकीद की है। तो अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी और ईडी तो उन पर आनी ही थी। आया दिन मगरबी बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कलकत्ता पुलिस ने एक हफ्ते में दूसरी बार लाडली नुपुर शर्मा को बुलाया, तलब किया। पुलिस ने नोटिस भेजकर नुपुर शर्मा को बुलाया मगर लाडली आज तक न गिरफ्तार हो पा रही है, न मुंबई की पुलिस न हिंदुस्तान की कहीं की पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने में कामयाब हो रही है। हाँ, इसको गिरफ्तार करने की डिमांड करने वाले 500 लोग जेल में जा चुके हैं और कई बेकसूर मारे जा चुके हैं। इसके खिलाफ लिखने वाले भी बाकायदा जेलों में जा चुके हैं। जैसे आपको याद होगा, गुज़िश्ता कल मैं एनडीटीवी का प्राइम न्यूज़ आज सुबह ही देख रहा था तो उसमें मैंने हेडिंग पढ़ा कि इस मुल्क में अभी सच लिखने वाले, सच बोलने वाले या झूठ से इस मुल्क को और फेक न्यूज़ से बचाने वाले मोहम्मद ज़ुबैर जेल के सलाखों में हैं और नफरतें फैलाने वाले यति नरसिंह आनंद स्वामी हो या और भी जितने शैतान हो वो सब के सब अभी आज़ाद है। तो ज़ुबैर को लेकर भी खबर आ रही है कि मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिनों की मशरूत ज़मानत दी है, लेकिन फ़िलहाल उन्हें दिल्ली पुलिस की हिरासत में एक दूसरे मामले में रहना पड़ेगा। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से आ रही है। जी हाँ, हरियाणा के एक बीजेपी लीडर है और आईटी सेल के सरबराह है अरुण यादव। इन्होंने भी शैतानी हरकत की, घटिया और खबीस हरकत की। इनको भी लग रहा है कि मैं भी नुपुर शर्मा की तरह फेमस हो जाऊंगा, तो इन्होंने भी शैतानी हरकत करते हुए प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, जिसकी वजह से हरियाणा बीजेपी ने पार्टी लीडर को ओहदे से बरतरफ कर दिया, ओहदे से हटा दिया। जी हाँ, आसान चीज़ है। नुपुर शर्मा ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट कह रही कि इसकी वजह से कन्हैया का भी कत्ल हुआ, मगर नुपुर शर्मा को सिर्फ ओहदे से हटा दिया गया, बाकी गिरफ्तार नहीं करवाया गया। जी हाँ, ऐसे ही इसको भी सिर्फ ओहदे से हटा दिया गया। मुल्क के हालात ख़राब करने के लिए ये लोग काम करते रहेंगे और इन्हें सिर्फ बीजेपी ओहदों से हटाती रहेगी। जेल के सलाखों में बीजेपी अपने लीडरों को जाने नहीं देगी। सोशल मीडिया पर लोग बाकायदा भाजपा के खिलाफ ज़बरदस्त अंदाज में ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाजपा इस वक्त अपने ऐसे ही पालतू लोगों को इस्तेमाल कर रही है और मुल्क का माहौल ख़राब कर रही है और इन्हें सिर्फ ओहदे से हटाकर मुल्क को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें गिरफ्तार होने से बचा रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी अजीब व गरीब खबर फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन
बस दूसरे ही पहले ही दिन, गोया कि यूँ समझिए अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पहले ही दिन बेचारे डीएनए में आए थे और सुधीर चौधरी जो है वो बाहर की हवा खा रहे हैं। उन्होंने पूरा दलाली का, सत्ता की दलाली का पूरा हक अदा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई थी तो बाहर की हवा खा रहे हैं। अब रोहित रंजन उनका मुकाबला करके दलाली में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे थे और राहुल गांधी के खिलाफ गलत वीडियो चला दी। आखिर फिर कांग्रेसियों ने कार्रवाई करवाई तो फिर रोहित रंजन पर कार्रवाई हुई, लेकिन रोहित रंजन फिलहाल आज़ाद ही है, फरार होने में कामयाब है। पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही है और अलग अलग स्टेट में उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हुई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से एक अजीब फैसला आया है जिसका सुप्रीम कोर्ट का लोग फिर सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे। हालांकि ये चीज़ गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया जाए। हाँ, जो सत्ताधारी पार्टी के यूँ समझिए कि लोग होते हैं वो अगर उड़ा दें, जैसे किसी ने अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा, पाकिस्तानी दलाल कहा, जजों को पाकिस्तानी एजेंट कहा, मुसलमानों के एजेंट कहा, न जाने क्या क्या कहा, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसकी वजह से और दूसरे लोगों के हौसले बढ़ते हैं। तो अब लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को ये आदेश जारी किया कि रोहित रंजन के खिलाफ कार्रवाई न किया जाए। रोहित रंजन के खिलाफ कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो अब लोग कमेंट कर रहे हैं कि रोहित रंजन बड़ा ख़ास आदमी है सत्ता का और सत्ता के चैनल का बड़ा ख़ास आदमी है, इसलिए मोहम्मद ज़ुबैर तो बिल्कुल सच कमेंट करने पर जेल की सलाखों में है और रोहित रंजन के लिए रोक लगा दी गई है कि इस पर कार्रवाई न की जाए। इससे ये हो रहा है कि मुल्क में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की छवि भी ख़राब हो रही है। चलिए आइए नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मासूम बेटियों का रेप करने वालों के लिए भी बाकायदा रैलियाँ निकालते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं, उनको बचाने के लिए बाकायदा बेचारे आवाज़ बुलंद करते हैं। ऐसे भी लोग हमारे यहाँ हैं जो कातिलों को बचाने की कोशिश करते हैं, मुल्क का माहौल ख़राब करने वाले शैतानों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी खबरें आ रही है कि हिंदू कम्युनिटी की मदद के लिए, ये हिंदू कम्युनिटी की मदद नहीं है, ये सिर्फ मखसूस वो शैतान जो मुल्क में माहौल ख़राब कर रहे हैं उनकी मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनों ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया और ये कहा कि इस्लामिक बुनियाद परस्तों से जिन्हें धमकियां मिल रही हैं वो हमसे राब्ता करें। यानी जो भी शैतान मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, पैगम्बर मोहम्मद के ख़िलाफ़ बोलेगा और मुल्क में कई बेकसूर उसकी वजह से कत्ल होंगे, तो उनको बचाने के लिए बाकायदा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हेल्प लाइन नंबर जारी किया है। तो ये खैर कोई नई बात नहीं, हमारे मुल्क में इससे पहले भी बाकायदा बड़े बड़े रेप करने वाले, बड़े बड़े कातिल, बड़े बड़े शैतानों के लिए भी ऐसे खड़े रहने वाले लोग हैं। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर एक को इख्तियार है कि आप कातिल और रेपिस्ट के लिए और शैतानों के लिए भी समर्थन में खड़े रह सकते हैं। और आप अगर भगवा ब्रिगेड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप पर कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं होगी। आइराज, इस वक्त हरिद्वार उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हरिद्वार आप जानते हैं कि यहीं पर एक यूँ समझिए कि धर्म संसद के नाम पर आतंकी संसद हुई थी और कुछ आतंकवादियों ने बाकायदा मुल्क में अमन को ख़त्म करने के लिए नफ़रतें फैलाने और हथियार उठाने की बात कही थी कि हिंदुओं हथियार उठाओ, और आज वो आज़ाद है क्योंकि भगवा लिबास पहने हुए हैं। तो वही हरिद्वार वालों में ये कोशिश की थी कि हरिद्वार पाक पवित्र स्थान है, यहाँ पर कुर्बानी से इसको पाक रखा जाए, कोई जानवर को यहाँ पर ज़बह ना की जाए, कोई कुर्बानी यहाँ पर ना की जाए। हाँ, हरिद्वार में आतंकी सम्मेलन हो सकता है, आतंकी संसद हो सकती है, आतंकवाद की खून खराबे की बातें हो सकती है, लेकिन कुर्बानी ना करें। तो इसके लिए बाकायदा इन्होंने अदालत में एक अर्जी दायर की थी, लेकिन अदालत ने हरिद्वार को ज़बह से पाक जोन करार देने के नोटिफिकेशन पर अदालत ने रोक लगा दी और कुर्बानी को मंजूरी दे दी। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल जुमा का दिन था, अब आने वाले कल कुर्बानी वाला त्यौहार है। पूरे मुल्क से खबरें आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह
मुल्क के तमाम उलमा और इमामों ने मस्जिदों में जुमा के प्रवचन में मुसलमानों से कहा कि खुले में कुर्बानी न करें, सोशल मीडिया पर तस्वीरें न लगाएं। और मैंने खुद, जहां मेरा बयान था, मैंने खुद कहा कि अपने बिरादरान वतन, अपने हिंदू भाइयों के जज्बात का ख्याल रखते हुए आप अपने मज़हब पर अमल करें। आपके कुर्बानी के अमल से अपने भाई को तकलीफ़ ना हो, इसका भी ख्याल रखें। ये इस्लाम सिखाता है। आइए, शिवसेना लगातार यूँ समझिए कि बागियों का निशाना है, बगावत करने वालों का निशाना है। और अब तो बड़ी खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने ये तक कह दिया है शिवसैनिकों से कि नई निशानी के लिए तैयार रहें। यानी शिवसेना की जो निशानी तीर कमान है, अब उस पर भी सस्पेंस बन गया है। यानी शिवसेना भी छीनी जा सकती है और शिवसेना के तीर कमान की निशानी भी उद्धव ठाकरे से छीनी जा सकती है। वहीं पर खबरें ये भी आ रही है जनाब कि शिवसेना के जो कद्दावर नेता है संजय राउत, जो लगातार हुकूमत पर और मोदी जी पर हमला करते रहते हैं, उनके खिलाफ ज़मानत वारंट, काबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया है। क्योंकि उन्होंने जो मेधा सोमिया का मामला उठाया था, तो हद के इज्जत मामले में एक काबिल ज़मानत वारंट जारी किया गया है। वैसे ईडी का भी वो शिकार हो चुके हैं। और ऐसे तमाम लोग जो हुकूमत के ख़िलाफ़ सच भी बोलते हैं तो वो भी बचने वाले नहीं हैं। लोग कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का उन्हें निशाना ज़रूर बनना है। लेकिन खैर, उद्धव ठाकरे फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। एकनाथ शिंदे को, उद्धव जी का कहना है कि एकनाथ शिंदे को गवर्नर ने जो हुकूमत बनाने की दावत दी, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ। और गवर्नर नहीं, बाकायदा बीजेपी के लिए काम करने वाले लग रहे हैं। तो अब उद्धव जी ने एकनाथ शिंदे को, जो गवर्नर ने हुकूमत साजी की दावत दी, इसको उद्धव जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आखिरी बड़ी खबर फिलहाल वादी कश्मीर श्रीनगर से आ रही है। जी हाँ, अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद श्रीनगर ने हुक्काम की जानिब से आज एक बार फिर मरकज़ी जामे मस्जिद को आवाम के लिए नमाज जमा जैसे अहम फरीज़े की अदायगी के लिए बंद कराने पर रिएक्शन जाहिर करते हुए इसे हद दर्जे अफसोसनाक करार दिया। क्योंकि गुज़िश्ता कल भी तारीख़ी जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं जब पिछले महीने में वहाँ गया, श्रीनगर जामे मस्जिद की तस्वीरें मैंने खुद लिया, वीडियो बनाया, और मुझे वक्त नहीं मिल पाया, उसकी थोड़ी सी मैं तारीख़ भी डालने वाला हूँ। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन वहीं पर एक बदसूरत बात यह है कि अक्सर इस मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा करने से रोका जाता है, जिसको लेकर श्रीनगर के लोग और मुसलमान कश्मीर हमेशा अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। गुज़िश्ता कल भी तारीख़ी जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने नहीं दिया गया, जिसको लेकर अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद ने इससे बिल्कुल घटिया और अफसोसनाक अमल करार दिया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।